نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آیت نمبر 33 کی تلاوت آپ نے سنی۔ اس کے اندر جو مضمون چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ ہے تخلیق آدم کے حوالے سے، جو آیت نمبر 30 سے شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین میں انسان بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت اور ناانصافیہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کی ضروریات زندگی کی چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں انہی چیزوں کا علم ہے جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں، یہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا آپ بتاؤ، کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے بتا دیے، کیونکہ انہیں علم تھا، ان کی ضرورت تھی، ان کے متعلق تھی، تو انہوں نے فوراً بتا دیے۔ تو پھر رب العزت نے اپنی علمی برتری ثابت کی، فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو سب کو نظر آتا ہے وہ تو مجھے نظر آتا ہی آتا ہے، لیکن جو تم چھپا لیتے ہو وہ اپنے سینے میں ہو یا کہیں بھی ہو تو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ ظاہر تو جانتا ہی جانتا ہوں، جو چیز چھپی ہوئی ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تمہارے علم کے مطابق چھپی ہوتی ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، وہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اسے تو پتہ ہے کون سی چیز کہاں ہے۔ تو یہ ہمارے علم کے حوالے سے ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، آج کے ہمارے سبق میں اتنی ہی بات ہے، مزید انشاءاللہ بعد میں۔ مصباح القرآن میں ترجمہ قرآن کے 2 اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات قالا،
उसने कहा, किससे निकला? कौल से। कौल अकवाल मकूला अकवाल ज़र्री। काला उसने कहा, या आदमु, ए आदम। या उर्दू में बोला जाता है या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, और एक दूसरे को बुलाने के लिए भी कह देते हैं या खालिद, या अब्दुल्ला, या अब्दुर्रहमान। तो आदम हमारे बाबा जी का नाम है जो सैयदुल इंसान है, तमाम इंसानियत के भी सरदार हैं, नबी हैं, रसूल हैं और बाबाए कायनात हैं। अम्बेहुम, ये लफ्ज निकला है नबी से, नबी अंबिया खबर देने वाला, लेकिन इसके शुरू में जो हमजा है इसका माना मैं नहीं है, या ता हमजा नून वाला नहीं है, बल्कि ये फेल अमर वाला हमजा है। इसके अंदर हुक्म का मफहूम है। अम्बेहुम, तू खबर दे इन्हें। हिम जो है फेल के आखिर में इस्तेमाल हुआ है, तो इसका तर्जमा उन्हें किया जाएगा। अम्बेहुम, आप खबर दें इन्हें, बी अस्माइहिम, इनके नामों की, इनके नामों की। तो हिम का तर्जमा इनके और बी का की है ना, आप जानते हैं का, की, के को भी तर्जमा हो जाता है बी का। ए आदम, आप खबर दें इन्हें, बी अस्माइहिम, इनके नामों की। अलामत हुम हो या हिम इस्म के आखिर में आए तो तर्जमा उनका, उनकी, उनके या अपना, अपनी, अपने किया जाता है। फलम्मा, तो जब, इसका तर्जमा तो जब भी हो सकता है, फिर जब भी हो सकता है। तरतीब है ना, तरतीब वाला तर्जमा फिर है, और अगर आप तरतीब वाला तर्जमा नहीं करते तो जब कर लें, पस जब कर लें, तो दोनों तर्जमे दुरुस्त है, पस जब, तो जब या फिर जब। फलम्मा, फिर जब, अम्बाअहुम, उसने खबर दी उन्हें, उसने खबर दी उन्हें। यहां हम फेल के आखिर में आया है, और इसका जो हमजा है ये हमजा फेल के शुरू में जो आता है, जो फेल के माना में तब्दीली लाता है। नबा खुद खबर देना, अम्बा किसी और को खबर देना, खराजा खुद निकलना, अखराजा किसी और को निकालना। तो ये अम्बा जो है फेल के माना में तब्दीली लाने वाला हमजा है। उसने खबर दी उन्हें, पहले बात उसने अपने तक थी, अब वो फरिश्तों को बता रहे हैं। फलम्मा अम्बाहुम, तो जब उसने खबर दी उन्हें, बी अस्माइहिम, उनके नामों की। अस्मा किसकी जमा है? इस्म उनकी। हाँ जी, जब उसने खबर दी उन्हें उनके नामों की। काला, उसने कहा, कहने वाला कौन है? अल्लाह ताला। काला, अल्लाह ने कहा, अलम, क्या नहीं, हमजा अलग है और लम अलग है, क्या नहीं, अकुल, मैंने कहा। ये हमजा याता हमजा नून में से मैं का तर्जमा देता है। अकुल कौल से निकला है, इस लफ्ज का ऑपरेशन हुआ है, इसके अंदर जो कौल की वाव थी वो लिखने में नहीं आएगी। अकुल, क्या मैंने नहीं कहा था, लकुम, तुम्हारे लिए या तुमसे। काला यकुलू के बाद जब लामज़र ली आता है तो तर्जमा से किया जाता है। अलम अकुल लकुम, क्या नहीं मैंने कहा था तुमसे, इन्नी, बेशक मैं, आलमू, मैं जानता हूं। इन्नी के अंदर या का तर्जमा भी मैं, आलमों के हमजा का तर्जमा भी मैं। जब इस तरह डबल अल्फाज आते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि बात में जोर डाला जाए, ताकीद के साथ पावरफुल बात की जाए। इन्नी आलमू, और अगर आप रवां तर्जुमे में सिर्फ कहें कि बेशक मैं जानता हूं तो काफी है, लेकिन लफ्जी तर्जुमा अलग अलग ही होगा। इन्नी, बेशक मैं,
आलमु मैं जानता हूं, गैबा छुपी हुई बातें, अस्समावात आसमानों की, गैबस समावाती वल अर्ज छुपी हुई बातें आसमानों की और जमीन की, व आलमु और मैं जानता हूं, या था हमजा नून में से हमजा मैं वाला, हाँ जी, मैं जानता हूं मां जो तुबदूना तुम सब जाहिर करते हो। तुबदूना नया लफ्ज है, याद रखिएगा, तुबदूना तुम सब जाहिर करते हो, वमा और जो, मां का तर्जुमा जो भी होता है, नहीं ना और क्या भी होता है, यहां जो ही है, और जो कुन तुम हो तुम तख्तुमून तुम सब छुपाते। छुपाने के माना में उर्दू जबान में हमारे यहां बोला जाता है कितमान इल्म, कितमान हक। कितमान का माना छुपाना है, कितम छुपाना। वमा कुन तुम तख्तुमून और जो तुम छुपाते हो वो सब अल्लाह ताला जानते हैं। दूसरा उसलूब तफहीम कुरान बजरिया उर्दू जुबान। इस उसलूब में 65% अल्फाज उर्दू में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं, 20% बार बार आते हैं और 15% अल्फाज आपने याद करने हैं। आपकी वोकैबुलरी है, जखीरा अल्फाज है सुर्ख रंग में। आज के हमारे सबक में सिर्फ एक लफ्ज है तुबदूना, तुम सब जाहिर करते हो। बकिया सब उर्दू में है या बार बार आने वालों में है। काला किससे निकला? कौल से। कौल अकवाल, मकूला अकवाल ज़र्री। या आदम, दो चीजें हैं, या और आदम। या को उर्दू में बोले या अल्लाह, या रहमान, और आदम आदम अलैहिस्सलाम। हाँ जी, अम्बे हुम नबी, नबूवत और अंबिया, बी अस्माइहिम। बा का माना को है, इनके नामों को बताओ, तो ये नीले रंग में आएगा। हिम 20% में से पहले है और अस्मा किसकी जमा है? इस्म की। इस्म बा मुसम्मा, इसमें ग्रामी, अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है 100 के करीब, उन्हें अस्माए हुस्ना, प्यारे प्यारे नाम कहा जाता है। फलम्मा, तो जब 20% में से, फिर जब भी कह सकते हैं। अम्बाहुम नबी, नबूवत, अंबिया, बी अस्माइहिम, इस्म अस्माए हुस्ना। काला किससे निकला? कौल से। कौल अकवाल, मकूला अकवाल ज़री। हमजा का माना क्या? लम का नहीं। अकुल मैंने कहा। कौल अकवाल, मकूला अकवाल ज़री। लकुम तुम्हारे लिए या तुमसे, यहां तर्जमा से करना चाहिए क्योंकि ये काला यकूलू के बाद लाम ज़बर ला आ रहा है। अलम अकुल क्या नहीं कहा मैंने तुमसे, इन्नी बेशक मैं, आलमु मैं जानता हूं। आलमु किससे निकला? इल्म से। इल्म, आलिम, मालूम, तालीम, तालीमात, मालूमात। गैब, गैब की बातें, गैबी इमदाद, गैबी ताकत। अस्समावात किसकी जमा है? समाउन की। अर्जो समा, कुतुब समाविया और समावी आफात भी कहते हैं। वाव का माना और, अर्ज का माना जमीन। अर्जो समा, कुर्रा अर्ज, किता अर्ज, अर्ज मुकद्दस। वाव का माना और। आलमु मैं जानता हूं, इल्म से निकला। इल्म, आलिम, मालूम, तालीम, मालूमात वगैरह। मा का माना जो, माहौल, माजरा, मातहत, मावराए अदालत वगैरह। तुबदूना तुम सब जाहिर करते हो। 3 मर्तबा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। ये एक याद हो गया तो समझ लो 3 याद हो गए। वाव का माना और मा का माना जो। कौन तुम हो।
तक्तुमून छुपाते, कितमान हक कितमान इल्म। आज के हमारे सबक में सिर्फ एक लफ्ज है, तुबदूना, तुम सब जाहिर करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक समझने के बाद अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसे प्यारे बंदों में शरीक फरमाए जिसे देखकर लोगों को अल्लाह याद आ जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।